بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا على تسلیما کثیرا کثیرا کیا یہ رحمن الرحیم 15واں پارہ کا ترجمہ شروع کرتی ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب کے وقت مسجد حرام یعنی مسجد کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گرد یعنی ملک شام میں ہم نے برکتیں کر رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھلا دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے دیکھنے والے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے اعلیٰ ہدایت بنایا کہ تم میرے سو اپنا کوئی کارساز مت قرار دو۔ ان لوگوں کے نسل جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا وہ نوح بڑے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بطور پیشن گوئی بتلا دی تھی کہ تم سرزمین شام میں 2 بار خرابی کرو گے اور بڑا زور چلانے لگو گے، پھر جب ان 2 بار میں سے پہلی بار کی سزائے شرارت کی میعاد آئے گی ہم تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کر دیں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے، پھر وہ تمہارے گھروں میں گھس پڑیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور یہ ایک وعدہ جو ضرور ہو کر رہے گا۔ پھر جب تم توبہ کرو گے تو ان پر تمہارا غلبہ کر دیں گے اور مال اور بیٹوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری جماعت کو بڑھا دیں گے۔ اگر اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے اچھے کام کرو گے، اور اگر پھر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے لیے۔ پھر جب پچھلی بار کی میعاد آئے گی ہم پھر دوسروں کو مسلط کریں گے تاکہ مار مار کر تمہارے منہ بگاڑ دے، جس طرح وہ لوگ پہلی مرتبہ مسجد بیت المقدس میں گھسے تھے یہ پچھلے لوگ بھی اس میں گھس پڑے ہیں۔ جس پر ان کا زور چلے سب کو برباد کر ڈالے۔ اگر آئندہ اسلام کا اتباع کرو گے تو عجیب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اگر پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے۔ ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کا جیل خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ اللہ اجرنی من النار۔ بلا شبہ یہ قرآن ایسے طریقوں کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا یعنی اسلام ان ایمان والوں کو جو کہ نیک کام کرتے ہیں یہ خوش خبری دیتا ہے، ان کو بڑا بھاری ثواب ملے گا، اور یہ بھی بتلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے لیے ایک دردناک سزا تیار کر رکھے۔ اور بعض انسان برائی یعنی عذاب کی ایسی درخواست کرتا ہے جس طرح بھلائی کی درخواست کر انسان کو کچھ بن ہی جلد باز ہوتا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، سو رات کی نشانی کو تو ہم نے دھندلا بنایا، دن کی نشانی ہم نے روشن بنایا تاکہ دن کو تم اپنے رب کی روزی تلاش کرو، تاکہ برسوں کا شمارہ حساب معلوم کر لو۔ اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا، ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار کر رکھا ہے، اور پھر قیامت کے دن ہم اس کا نام اعمال اس کے واسطے نکال کر سامنے کر دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا اپنا نام اعمال خود پڑھ لے گا۔ آج تو خود اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔ جو شخص دنیا میں راہ پر چلتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے راہ پر چلتا ہے، جو شخص بے راہی کرتا ہے سو وہ بھی اپنے ہی لیے نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو نہیں بھیج لیتے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خود ایسے لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر جب وہ لوگ وہاں شرارت مچاتے ہیں تو ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر ہم اس بستی کو تباہ غارت کر ڈالتے ہیں۔ ہم نے بہت سی امتوں کو نوح علیہ السلام کے بعد کفر و معصیت کے سبب ہلاک کیا،
आपका रब अपने बंदों के गुनाहों का जानने वाला, देखने वाला, काफिया। जो शख्स दुनिया के नफा की नियत रखेगा, हम ऐसे शख्स को दुनिया में जितना चाहेंगे और जिसके वास्ते चाहेंगे फिलहाल ही दे देंगे, फिर हम इसके लिए जहन्नम तजवीज़ करेंगे। अल्लाह अजिन्नी मन्ना इसमें बदहाल राधा दरगाह होकर दाखिल होगा। आज जो शख्स आखिरत के सवाब की नियत रखेगा, इसके लिए जैसी सही करना चाहिए वैसी सही भी करेगी। बशर्त यह कि वो शख्स मोमिन भी हो। सो ऐसे लोगों की ये सही मकबूल होगी आपके रब की इस बात अता जुनवी में, तो हम इनको भी इमदाद करते हैं और उनकी भी। आपके रब की ये अता जुनवी किसी पर बंद नहीं। आप लिए देख लीजिए हमने एक दूसरे पर किस तरह फौकियत दिया, अलबत्ता आखिरत दर्जों के एतबार से भी बहुत बड़ी है, फजीलत के एतबार से भी बहुत बड़ी है। बहक के साथ कोई और माबूद मत तजवीज़ कर, यानी शिरक मत करो, वरना तू बदहाल बेमददगार होकर बैठेगा। तेरे रब ने हुक्म दिया कर दिया है कि बखर इसके और किसी की इबादत मत करो, और तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया करो। अगर तेरे पास इनमें एक या दोनों के बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको कभी हाथ उनसे भी मत करना, आना उनको झिड़कना, उनसे खूब अदब से बात करना, उनके सामने नरमी आनी, उनके सारी के साथ झुके रहना, यूं दुआ करते रहना, वकुर रब्बि हम कमा रब्बयानी सगीरा करते रहना। मेरे परवरदिगार इन दोनों पर रहमत फरमाई है, जैसा उन्होंने मुझको बचपन में पाला परवरिश किया। अल्लाह माँ बाप पर भी रहम फरमा। तुम्हारा रब तुम्हारी माफिल जमीर को खूब जानता है। अगर तुम शहादतमंद हो तो वो तौबा करने वालों के ही खता माफ कर देता है। कराबतदार को इसका हक माली व गैर माली देते रहना, और मोहताज है मुसाफिर को भी देते रहना। माल को बेमौका मत उड़ाना, क्योंकि बेशक बेमौका उड़ाने वाले शैतानों के भाई बंद यानी उनके मसाबा हैं, और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है। और अगर अपने रब की तरफ से जिस रिस्क के आने की उम्मीद हो उसके इंतजार में तुझको उनमें से पहलू तही करना पड़े तो उनसे नरमी से बात कह देना, और न तो अपना हाथ गर्दन ही से बांध लेना चाहिए, आना बिल्कुल ही खोल देना चाहिए, वरना इल्जाम ने खुर्दा दस्त होकर बैठ रहोगे। भला सुबह तेरा रब जिसको चाहता है ज्यादा रिस्क देता है, वही तंगी कर देता है। बेशक वो अपने बंदों को खूब जानता है, देखता है। अपनी औलाद को नादारी अंदेशा से कत्ल मत करो, क्योंकि हम इनको भी रिस्क देते हैं और तुमको भी। बेशक इनका कत्ल करना बड़ा भारी गुनाह, और जिना के पास भी मत भटको। भला सुबह बड़ी बेहयाई की बात है, बुरी राह से। जिस शख्स के कत्ल को अल्लाह ताला ने हराम फरमाया है उसको कत्ल मत करो, हम अगर हक पर। और जो शख्स नाहक कत्ल किया जाए तो हमने इसके वारिस को इख्तियार दिया है, तो इसको कत्ल के बारे में हद से तजावज न करना। वो शख्स तरफदारी के काबिल है। यतीम के माल के पास न जाओ, मगर ऐसे तरीके से जो कि मुस्तहसन है, यहाँ तक कि वो अपने सिने बलूग को पहुँच जाए। अहद मशरूह को पूरा किया करो। बेशक ऐसे अहद की क़यामत पुरस होने वाली है। जब तुम नाप तौल करो तो पूरा नापो और सही तराजू से तौल कर दो। ये फी नफ्सा भी अच्छी बात है, अंजाम में भी इसका अच्छा है। जिस बात की तुझको तहकीक न हो इस पर अमल दरामद मत किया करो, क्योंकि कान और आँख का दिल हर शख्स से उन सब के की क़यामत के दिन पूछोगी। और जमीन पर इतरा होता हुआ मत चल, क्योंकि तू न तो जमीन को फाड़ सकता है, न बदन को तान कर पहाड़ों की लंबाई को पहुंच सकता है। ये सारे बुरे काम तेरे रब के नजदीक बिल्कुल नापसंदीदा हैं। ये बातें उन की है इस हिकमत में की है कि जो खुदा ताला ने आप पर वही के जरिया से भेजी है। अल्लाह बरहक के साथ कोई और माबूद तजवीज़ मत करना, वरना तो इल्ज़ाम खुदा आरामदा होकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तू क्या तुम्हारे रब ने तुमको
تو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنائی۔ بے شک تم بڑی سخت بات کہتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا تاکہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ اس توحید سے نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ فرمائیے کہ اگر اس کے ساتھ آپ معبود بھی ہوتے جیسا یہ لوگ کہتے تو اس حالت میں آس والے تک انہوں نے راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پاک بہت زیادہ برتر ہے۔ تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جتنے ان میں ہیں اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تاریخ کے ساتھ اس کی پاکی کالن یا حالن بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کے پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ وہ بڑا حلیم ہے، بڑا غفور ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے جو لوگ آخرت پر یا ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وہ پردہ یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر حجاب ڈال دیتے ہیں، اس سے کہ وہ اس قرآن کے مقصود کو سمجھا، ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دیتے ہیں۔ جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پشت پھیر کر چل دیتے ہیں۔ جس وقت یہ لوگ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے یہ سنتے ہیں، اور جس وقت یہ لوگ آپ میں سرگوشیاں کرتے ہیں جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ محض ایسے شخص کے ساتھ ساتھ دے رہے ہو جس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے تو یہ لوگ آپ کے لیے کیسے القاب تجویز کرتے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہو گئے، راستہ نہیں پا سکتے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر ہڈیاں چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا اور زندہ کیے جائیں گے؟ آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا یا ایسی کوئی اور مخلوق ہو کر دیکھ لو جو تمہارے ذہن میں بہت ہی بعید ہو۔ اس پر پوچھیں گے کہ وہ کون ہے جو ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ فرما دیجئے کہ وہ ہے جس نے تم کو اول بار پیدا کیا تھا۔ اس پر آپ کے آگے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ اچھا بتلاؤ یہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ عجب نہیں، یہ قریب ہی آ پہنچا۔ اس روز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو پکارے گا، تم اس طرح اس کی حمد کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرو گے اور تم یہ خیال کرو گے کہ تم بہت ہی کم رہے تھے۔ آپ میرے مسلمان بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہا کرے جو بہتر ہو۔ شیطان سخت کلامی کرا کے لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا شریک دشمن ہے۔ تم سب کا حال تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم پر رحمت فرمائے دے یا اگر وہ چاہے تم کو عذاب دینے لگے۔ ہم نے آپ تک ان کی ہدایت کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو کہ آسمان میں ہے زمین میں۔ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ہم داؤد علیہ السلام کو زبور دے چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود قرار دے رہے ہو ذرا ان کو پکارو تو صحیح، یقیناً وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے بدل ڈالنے کا۔ یہ لوگ کہ جن کو یہ مشرکین پکار رہے ہیں خود ہی اپنے رب کی طرف ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے، اس کی رحمت کے امیدوار ہے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور واقعی آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل، اور کفار کی ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں گے یا قیامت کے روز اس کو عذاب سخت نہ دیں گے۔ یہ بات یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ ہم کو خاص فرمائشی معجزات کے بھیجنے سے یہی امر مانا ہوا کہ پہلے لوگ ان کی تکذیب کر چکے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو کہ بصیرت کا ذریعہ تھی، تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ ہم ایسے معجزات کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ آپ وہ وقت یاد کر لیجئے جبکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب اپنے علم سے تمام لوگوں محیط ہو رہا ہے۔ ہم نے جو تماشا آپ کو واقعہ معراج میں بحالت
بیداری دکھلایا تھا جس درخت کے قرآن میں مذمت کی گئی ہے، ہم نے تو ان دونوں چیزوں کو ان لوگوں کے لیے موجے میں گمراہی کر دیا، اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی بڑی سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا اور کہا کہ ایسے شخص کو سجدہ کرو جس کو آپ نے مٹی سے بنایا۔ کہنے لگا اس شخص کو جب آپ نے مجھ پر فوقیت دیا تو بھلا بتلائیے، تو خیر اگر آپ مجھ کو قیامت کے زمانہ تک مہلت دے دی تو میں بھی بخبر قدرے قلیل لوگوں کے اس کو تمام آلات کو اپنے بس میں کروں گا۔ ارشاد ہوا جا جو شخص اس میں سے تیرے ساتھ ہوگا وہ سو تم سب کو سزا جہنم ہے، اللہ جنی میں سزا پوری ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ پکار سے اس کا قدم اکھاڑ دینا، ان پر اپنے سوار آپ پیادے چڑھا لانا اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجی کر لینا، ان سے وعدہ کرنا کہ گناہوں پر مواخذہ نہ ہوگا۔ اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے، میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا۔ آپ کا رب کافی کارساز ہے، وکفی باللہ وکیل۔ تمہارا رب ایسا منعم ہے کہ تمہارے لیے کشتی کو دریا میں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کی رزق تلاش کرو، بے شک وہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے۔ جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بخبر اس خدا کیا جتنوں کو تم عبادت کرتے تھے سب غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم پھر بدستور ثابت پھر جاتے ہو۔ یہ واقعی انسان ہے بڑا ناشکر ہے، تو کیا تم اس بات سے بے فکر ہو بیٹھے ہو کہ تم کو خشکی کی جانب لا کر زمین میں دھسانے میں یا تم پر کوئی ایسی تند ہوا بھیجنے میں جو کنکر پتھر برسانے لگے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ؟ یہ یا تم اس سے بے فکر ہو گئے کہ وہ خدا تعالیٰ پھر تم کو دریا ہی میں دوبارہ لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے ہو اللہ، پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر اس بات پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا تم کو نہ ملے۔ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں سوار کیا، نفیس چیزیں ان کو عطا فرمائی، ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوق پر فوقیت دی۔ جس روز ہم تمام آدمیوں کو ان کے نام اعمال سمیت بلائیں گے، پھر جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ محاسبنی حساب یسیرا۔ ایسے لوگ اپنا نام اعمال پڑھیں گے، ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ جو شخص دنیا میں راہ نجات دیکھنے سے اندھا رہے گا سو آخرت میں بھی منزل کی نجات تک پہنچنے سے اندھا رہے گا، زیادہ راہ گم کردہ ہوگا۔ آج بھی یہ کافر آپ کو اس چیز سے بچلا نہیں لگے تھے جو ہم نے آپ پر وحی کے ذریعے سے بھیجی تھی تاکہ آپ اس کے سوا ہماری طرف غلط بات کی نسبت کریں، ایسی حالت میں آپ کو گاڑھا دوست بنا لیتے۔ اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے، اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو حالت حیات میں بعد موت کے دوہرا عذاب چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاتے، اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو آپ کے یہ بات یہ بھی بہت کم ٹھہرنے پاتے، جیسا کہ صاحبوں کے باب میں ہمارا قاعدہ رہا جن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور آپ ہمارے اس قاعدے میں تغیر نہ پائیں گے۔ آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے ہونے تک نماز ادا کیا کیجیے، اور صبح کی نماز بھی، بے شک صبح کی نماز فرشتوں کی حاضر ہونے کا وقت ہے، اور کسی قدر رات کے حصہ میں سو اس میں تہجد پڑھا کیجیے جو کہ آپ کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ زائد چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا۔ آپ یوں دعا کیجیے کہ اے رب مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیو اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیو، آپ مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیے جس کے ساتھ نصرت ہو، اور کہہ دیجیے کہ حق آیا باطل گیا گزرا ہوا، اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں شفقت و شفاء رحمت ہے، نا انصافوں کو اس سے اور الٹا نقصان بڑھتا ہے۔ آدمی کو جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور کمر پھیر لیتا ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی
होती है तो नाउमीद हो जाता है। आप फरमा दीजिए कि हर शख्स अपने तरीके पर काम कर रहा है, सो तुम्हारा रब खूब जानता है इसको जो ज्यादा ठीक रास्ता पर है। और ये लोग आपसे रूह के बारे में इम्तिहान पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है, तुमको बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। अगर हम चाहें तो जिस कदर वही आप पर भेजी है सब सल्ब कर ले, फिर इसके वापस लाने के लिए आपको हमारे मुकाबले में कोई हिमायती न मिले, मगर ये आपके रब की ही रहमत है कि ऐसा नहीं किया। बेशक आप पर उसका बड़ा फजल है। आप फरमा दीजिए कि अगर तो तमाम इंसान जिन्नात इस बात के लिए जमा हो जाए कि ऐसा कुरान बना लावे तब भी ऐसा न ला सकेंगे, अगरचे एक दूसरे का मददगार भी बन जावे। हमने इन लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर किस्म का उम्दा मजमून तरह तरह से बयान किया, फिर भी अक्सर लोग इनकार किए हुए न रहे। और ये लोग कहते हैं कि हम आप पर हरगिज ईमान न लाएंगे जब तक आप हमारे लिए मक्का की सरजमीन से कोई चश्मा न जारी कर दे, ये खास आपके लिए खजूर और अंगूर का कोई बाग न हो। फिर इस बाग के बीच बीच में जगह जगह बहुत सी नहरें आप जारी कर दें, या जैसा आप कहा करते हैं कि आप आसमान के टुकड़े हम पर न गिरा दें, या आप अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने न ला खड़ा कर दे। यानी काफी लोग ये कहते थे मुशरिक, या आपके पास कोई सोने का बना हुआ घर न हो, आप आसमान पर हमारे सामने न चढ़ जाएं, हम तो आपको आसमान पर चढ़ने को भी कभी बावर न करें। काफी लोग कह रहे हैं जब तक कि वहां से आप हमारे पास एक दोस्ता न लावे जिसको हम पढ़ भी ले। आप फरमा दीजिए कि सुभान अल्लाह, मैं बखबर इसके कि आदमी हूँ मगर पैगंबर हूँ, और क्या हूँ कि इन फरमाशों का पूरा करना मेरी कुदरत में हुआ। जिस वक्त इन लोगों के पास हिदायत पहुँचेगी इस वक्त इनको ईमान लाने से बखबर उसकी और कोई काबिल इल्तफात बात माना न हुई कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने बशर को रसूल बनाकर भेजा। आप फरमा दीजिए कि अगर जमीन पर फरिश्ते रहते होते कि इसमें चलते बसते तो अलबत्ता हम इन पर आसमान से फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजते। आप आखिर बात कह दीजिए कि अल्लाह ताला मेरे या तुम्हारे दरबान काफी गवाह, क्योंकि अपने बंदों को खूब जानता है, खूब देखता है। आज अल्लाह जिसको राह पर लाए वही राह पर आता है, जिसको बेराह कर दे तो खुदा के सिवा आप किसी को भी आंसू का मददगार न पाएंगे। हम क़यामत के रोज इनको अंधा गुंगा बहरा करके मुंह के बल चला देंगे, फिर इनका ठिकाना दो जगह अल्लाह जिन्नी मन्नार। अब वो जब जरा भी होने लगी तभी उनके लिए और ज्यादा भड़का देंगे अल्लाह जिन्नी मन्नार। यह है उनकी सजा। इस सबक के उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया था। यूँ कहा था कि जब हम हड्डियाँ बिल्कुल रेजा हो जाएंगे तो क्या हम इस शरीरों पैदा करके कब्रों से उठाए जाएंगे? क्या इन लोगों को इतना मालूम नहीं कि जिस अल्लाह ने आसमान जमीन पैदा किया इस बात पर बदरजा उला कादिर है कि उन जैसे आदमी दोबारा पैदा कर दे, इनके लिए एक मियाद मुअय्यन कर रखे, इसमें जरा भी शक नहीं। इस पर भी बेइंसाफ लोग इनकार किए न रहे। आप फरमा दीजिए कि अगर तुम लोग मेरे रब की रहमत यानी नबुवत के खजाने यानी कमालात के मुख्तार होते तो इस सूरत में तुम इसके खर्च करने के अंदेशा से जरूर हाथ रोक लेते। आदमी है बड़ा तंग दिल। हमने मूसा को खुले हुए 9 मोजेजे दिए, जबकि वो बनी इसराइल के पास आए थे। तो आप बनी इसराइल से पूछ लीजिए। तो फिरौन ने उनसे कहा क्या मूसा, मेरे ख्याल में जरूर तुम पर किसी ने जादू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो दिल में खूब जानता है कि अजायबात खास आसमान जमीन के परवरदिगार ही ने भेजे हैं जो कि बसीरत के लिए काफी जराए हैं, और मेरे ख्याल में जरूर तेरी कलबख्ती के दिन आ गए हैं। फिर उसने चाहा कि उन बनी इसराइल का इस सरजमीन से कदम उखाड़ दे, सो हमने उनको जो उनके साथ थे सबको गर्क कर दिया। इसके बाद हमने बनी इसराइल को कह दिया कि अब तुम इस सरजमीन में रहो सहो, फिर जब आखिरत का वादा आ जाएगा तो हम सबको जमा करके हाजिर करेंगे। हमने इस कुरान को रास्ती ही के साथ नाजिल किया, रास्ती ही के साथ नाजिल होगा। हमने आपको सिर्फ खुशी सुनाने वाला डराने वाला बनाकर भेजा है। कुरान में हमने जा बजा फैसल रखा ताकि आप उसको
लोगों के सामने ठहर ठहर कर पढ़े। हमने इसको उतारने में भी तदरीजन उतारा। आप कह दीजिए कि तुम उस कुरान पर खाई ईमान लाओ, खाई ईमान न लाओ। जिन लोगों को इस कुरान से पहले दीन का इल्म दिया गया था, ये कुरान जब उनके सामने पढ़ा जाता है तो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं, कहते हैं कि हमारा रब वादा खिलाफी से पाक है, बेशक हमारे रब का वादा जरूर पूरा ही होता है। ठोड़ियों के बल गिरते हैं रोते हुए, और ये कुरान इनका खुशू बढ़ा देता है। फरमाइए दीजिए कि खा अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारोगे इससे बहुत अच्छे अच्छे नाम है। अपनी नमाज में ना तो बहुत पुकार कर पढ़िए, ना बिल्कुल चुपके चुपके ही पढ़िए, और दोनों के दरमियान एक तरीका अख्तियार कर लीजिए। ये कह दीजिए कि तमाम खूबियाँ उसी अल्लाह पाक के लिए खास है, जो न औलाद रखता, न कोई सल्तनत में इसका शरीका, न कमजोरी की वजह से इसका कोई मददगार है। इसकी बड़ाइयाँ खूब बयान किया कीजिए। यहाँ से सूरह कहफ शुरू होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम खूबियाँ इस अल्लाह के लिए साबित है, जिसने अपने खास बंदे पर यह किताब नाजिल फरमाई। इसमें जरा भी कजी नहीं रखी, बिल्कुल इस्तकामत के साथ मौसूफ बनाया, ताकि वो एक सख्त अजाब से जो कि जानिबुल्लाह हो डराए अहले ईमान को, जो नेक काम करते हैं, खुशखबरी दे। इनको अच्छा अजर मिलेगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे, ताकि इन लोगों को डराए जो यूँ कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला औलाद रखता है, न तो इसको कोई दलील इनके पास है, न उनके बाप दादों के पास थी। बड़ी भारी बात है जो इनके मुँह से निकलते हैं, वो लोग बिल्कुल ही झूठ बकते हैं। आप जो इन पर इतना गम खाते हैं, शायद आप उनके पीछे अगर ये लोग इस मजूर कुरान पर ईमान न लाए तो गम से अपनी जान दे देंगे, यानी इतना गम न करे कि करीब हलाकत कर दे। हमने जमीन पर की चीजों को इस जमीन के लिए बाहर से रौनक बनाया, ताकि हम लोगों की आजमाइश करें यार इनमें ज्यादा अच्छा अमल कौन करता है। हम इस जमीन पर की तमाम चीजें को एक साफ मैदान यानी फना कर देंगे। क्या आप ये ख्याल करते हैं कि गाड़ वाले और पहाड़ वाले हमारी अजायबात कुदरत में से कुछ ताज्जुब की चीज थे? वो वक्त काबिल जिक्र है जबकि उनके नौजवानों ने इस गाड़ में जाकर पनाह ली, फिर कहा कि हमारे परवरदिगार हमको अपने पास से रहमत का सामान अता फरमाई और हमारे लिए हमारे इस काम दुरुस्ती का सामान मुहैया कर दीजिए। सो हमने इस गाड़ में इनके कानों पर साल हर साल तक नींद का पर्दा डाल दिया। फिर हमने इनको उठाया ताकि हम मालूम कर ले कि इन दोनों गरबा में से कौन सा गरबा इनके रहने की मुद्दत से ज्यादा वाकिफ था। हम इनका वाक़या आपसे ठीक ठीक बयान करते हैं। वो लोग चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे। हमने इनकी हिदायत में तरक्की कर दी थी, हमने इनके दिल मजबूत कर दिए, जबकि वो दीन में पुख्ता होकर कहने लगे कि हमारा रब तो वो है जो आसमान और जमीन का रब है, हम तो इसको छोड़कर किसी माबूद की इबादत न करेंगे, क्योंकि इस सूरत में हम यकीनन बड़ी बेजा बात कहेंगे। ये जो हमारी कौम है उन्होंने खुदा को छोड़कर और माबूद करार दे रखे हैं। ये लोग इन माबूदों पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते? तो इस शख्स से ज्यादा कौन गजब ढाने वाला होगा जो अल्लाह पर झूठ तोहमत लगा दे। जब इन लोगों ने से अलग हो गए और इनके माबूदों से भी, मगर अल्लाह से अलग नहीं हुए, तो तुम फलागार में चलकर पनाह लो। तुम पर तुम्हारा रब अपनी रहमत फैला देगा, तुम्हारे इस काम में कामयाबी का सामान दुरुस्त कर देगा। और ऐ मुखातिब, जब धूप निकलती है तो इसको देखेगा कि वो इनके गाड़ के दाहिनी जानिब को बसती ही रहती है, जब छिपती है तो गाड़ के बाईं तरफ हटती रहती है। वो लोग इस गाड़ के एक फराख मौक़ों में थे। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे वही हिदायत पाता है, जिसको वो बेराह कर दे तो इसको तो आप उसके लिए कोई मददगार राह बतलाने वाला न पाएंगे। आए मुखातिब, तो इनको जागता हुआ ख्याल करता है, हालांकि वो सोते थे। हम इनको कभी दाहिनी तरफ और कभी बाईं तरफ करवट दे देते थे। इनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर ऐ मुखातिब तो इनको झांक कर देखता तो उनसे पीठ फेर कर भाग खड़ा होता
तेरे अंदर उनकी दहशत समा जाती। इस तरह हमने इनको जगाया दिया ताकि आपस में पूछ पाछ करे। इनमें से एक कहने वाले ने कहा कि तुम हालात नींद में इस कदर रहे होगे। बाजों ने कहा कि गालिबन एक दिन या एक दिन से भी कम रहे होगे। दूसरे ने कहा कि ये तो तुम्हारे खुदा ही को खबर है तुम किस कदर रहे। अब अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर की तरफ भेजो, फिर वो तहकीक करने को कौन सा खाना हलाल है, सो इसमें से तुम्हारे पास कुछ खाना ले आवे। ऐसा एक काम खुश तदबीरी से कर यार, किसी को तुम्हारी खबर न होने दे, क्योंकि अगर वो लोग कहेंगे तो तुम्हारी खबर पा जाएंगे तो तुमको या तो पत्थरों से मार डालेंगे या तुमको अपने तरीका में फेल लेंगे। वो ऐसा हुआ तो तुमको अभी फलाना होगी। इस तरह हमने इन लोगों को इन पर मतलब कर दिया ताकि वो लोग इस बात का यकीन कर ले कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है कि क़यामत में कोई शक नहीं। वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि इस जमाना के लोग इनके मामले में बाहम झगड़ रहे थे। सो इन लोगों ने कहा उनके पास कोई इमारत बनवा दो, उनका रब उनको खूब जानता था। जो लोग अपने काम पर गालिब थे उन्होंने कहा कि हम तो इनके पास एक मस्जिद बना देंगे। बाजे लोग तो कहेंगे कि वो 3 है, चौथा उनका कुत्ता है। बाजे कहेंगे वो 5 है, छठा उनका कुत्ता और एक। ये लोग बेतहकीक की बात को हाँक रहे हैं। अब बाजे कहेंगे कि 7 है, 8वां इनका कुत्ता। आप कह दीजिए कि मेरा रब इनका शुमार खूब सही जानता है। उनके शुमार को बहुत कलील लोग जानते हैं। सो आप इनके बारे में बखबर सस्तरी बहस की ज़्यादा बहस न कीजिए और आप उनके बारे में इन लोगों में से किसी से भी न पूछिए। आप किसी काम की निस्बत यूँ न कहा कीजिए कि मैं इसको कल कर दूंगा, मगर खुदा के चाहने को मिला दिया कीजिए, यानी इंशाअल्लाह। आज जब आप भूल जाएं तो अपने रब का जिक्र कीजिए और कह दीजिए कि मुझको उम्मीद है कि मेरा रब मुझको नबुव्वत की दलील बनने के अख्तियार से इससे भी नज़दीक तर बात बतला दे। और वो लोग अपने गाड़ में हालत ख्वाब में 300 बरस तक रहे, 9 बरस ऊपर आ रहे। आप कह दीजिए खुदा तआला उनके रहने की मुद्दत को ज़्यादा जानता है। तमाम आसमान और ज़मीन का इल्म गायब उसी को है। वो कैसा कुछ देखने वाला, कैसा कुछ जानने सुनने वाला। इनका खुदा के सिवा कोई भी मददगार नहीं। आना अल्लाह ताला किसी को अपने हुक्म में शरीक करता है। और आपके पास जो आपके रब की किताब वही की जरिया से आई है, लोगों के सामने पर दिया कीजिए। इनकी बातों को यानी वादों को कोई बदल नहीं सकता। आप खुदा के सिवा कोई जाए पनाह न पाएंगे। आप अपने को इन लोगों के साथ मुकीद रखा कीजिए जो सुबह शाम यानी अलग दवाम अपने रब की इबादत महज इसकी रजाजोई के लिए करते हैं। दुनियावी जिंदगानी की रौनक के ख्याल से आपकी आंखें यानी तो तवज्जहात उनसे हटने न पाए। और ऐसे शख्स का कहना न मानिए जिसके कल्ब को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा, अपनी नफसानी ख्वाहिश पर चलता है, इसका ये हद से गुजर गया। आप कह दीजिए कि ये दीन हक तुम्हारे रब की तरफ से आया है। सो जिसका जी चाहे ईमान ले आए, जिसका जी चाहे काफिर है। बेशक हमने ऐसे जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है कि साग की कनाएं उनको घेरे होंगी। और अगर प्यास से फरियाद करेंगे तो ऐसे पानी से इनकी फरियाद रसी की जाएगी जो तेल की तलछट की तरह होगा। मुंहों को भून डालेगा। अल्लाह जिन्ने मन्ना, क्या ही बुरा पानी होगा। दोजख भी क्या ही बुरी जगह होगी। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्हें अच्छे काम किए तो हम ऐसों का आज जाया न करेंगे। जो अच्छी तरह काम को करे पास ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाद है। उनके मसाकिन के नीचे नहरें बहती होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इनको वहाँ सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज रंग के कपड़े बारीक और दबीज रेशम के पहनेंगे। वहाँ मुसहरियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। क्या ही अच्छा सिला हर बाहिश, क्या ही अच्छी जगह। आप इन लोगों से 2 शख्सों का हाल बयान कीजिए। इन 2 शख्सों में से एक को हमने 2 बाग अंगूर के दे रखे थे। इन दोनों
बागों का खजूर के दरख्तों से अहाता बना रखा था। इन दोनों के दरमियान खेती भी लगा रखी थी। वो दोनों बाग अपना पूरा फल देते थे, किसी फल में जरा भी कमी न रहती थी। इन दोनों के दरमियान में नहर चला रखी थी। और इस शख्स के पास और भी तमंतुल का सामान था। सो वो एक बार अपने इस दूसरे मुलाकाती से इधर उधर की बातें करते करते कहने लगा कि मैं तुझसे माल में भी ज्यादा हूँ और मजमा भी मेरा जबरदस्त है। अपने ऊपर जुर्म कुफ्र कायम करता हूँ। अपने बाग में पहुंचा कहने लगा कि मेरा ख्याल नहीं कि ये बाग मेरी हयात में कभी भी बर्बाद हो, और मैं क़यामत को नहीं ख्याल करता कि आवेगी। अगर मैं अपने रब के पास पहुंचाया गया तो जरूर इस बाग से भी बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह मुझको मिलेगी। इसकी मुलाकात ही ने, जो कि दीनदार और गरीब था, जवाब के तौर पर कहा, क्या तू कुफ्र करता है उस जात पाक के साथ जिसने तुझको अव्वल मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफा से, फिर तुझको सही ये सालिम आदमी बनाए। लेकिन मैं तो ये अकीदा रखता हूँ कि वो यानी अल्लाह ताला मेरा रब हकीकी है, मैं इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। तो जिस वक्त अपने बाग में पहुंचा तो तूने यूं ना कहा कि जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। वो दूर खुदा की मदद की किसी में कोई कुव्वत नहीं। अगर तू मुझको माल औलाद में कमतर देखता तो मुझको वो वक्त नजदीक मालूम होता है मेरा रब मुझको तेरे इस बाग से अच्छा बाग दे दिया है। तेरे बाग पर कोई तकदीरी आफत आसमान से भेज दे जिससे वो बाग दफतन एक साफ मैदान होकर रह जाए। इससे इसका पानी बिल्कुल ही अंदर जमीन में उतर कर खुश्क हो जाए। फिर तो इसके लाने का निकालने की कोशिश भी न कर सकेगा। आज शख्स के ईमान तमत्तुल को आफत ने आ घेरा। फिर उसने जो कुछ इस बाग पर खर्च किया था इस पर हाल मलता रह गया। बाग अपनी टेटों पर गिरा हुआ पड़ा था और कहने लगा, क्या खूब होता मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराता। इसके पास कोई ऐसी मजमा न हुआ कि खुदा के सिवा इसकी मदद करता न वो खुद हमसे बदला ले सका। ऐसे मौका पर मदद करना अल्लाह बरहकी का काम है। इसी का सवाब सबसे अच्छा, इसी का नतीजा सबसे अच्छा। आप इन लोगों से दुनिया जिंदगी की हालत बयान फरमाइए कि वो ऐसी है जैसे आसमान हमने पानी बरसाया, फिर इसके जरिए से जमीन को नबातात खूब गंजान हो गई, फिर वो रेजा रेजा हो जाएगी। इसको हवा उड़ा लिए फिरती हो। अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखते हैं। माल औलाद हयात दुनिया की एक रौनक है जो अमाल साला बाकी रहने वाले हैं। आपके रब के नजदीक सब आपके एतबार से भी 1000 दर्जा बेहतर है, उम्मीद के एतबार से भी 1000 दर्जा बेहतर है। आज दिन को याद करना चाहिए जिस दिन हम पहाड़ों को हकाएंगे और आप जमीन को देखेंगे कि खुला मैदान पड़ा है। हम इन सब को जमा कर देंगे, इनमें से किसी को भी न छोड़ेंगे। आज सब के सब आपके रब के रूबरू बराबर खड़े हो करके पेश किए जाएंगे। देखो आखिर तुम हमारे पास आए भी जैसा हमने तुमको पहली बार पैदा किया था, बल्कि तुम यही समझते हो कि हम तुम्हारे लिए कोई वक्त मऊद न लाएंगे और नामा अमाल रख दिया जाएगा। तो आप मुजरिमों को देखेंगे इसमें जो कुछ लिखा होगा उससे डरते होंगे और कहते होंगे कि हाय हमारी कमबख्ती इस नामा अमाल की अजीब हालत है कि कलम बंद किए, न कोई छोटा गुनाह छोड़ा और न बड़ा गुनाह छोड़ा, और जो कुछ उन्होंने किया वो सब लिखा हुआ मौजूद पाएंगे। आपका रब किसी पर जुल्म न करेगा। और जबकि मलाइकों को हमने हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो, तो सबने सजदा किया बखबर इब्लीस के, वो जिन्नात में से था। सो उसने अपने रब के हुक्म से अदुल किया। सो क्या फिर भी तुम इसको और उसके चेले चाटों को दोस्त बनाते हो, मुझको छोड़कर, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है। ये जालिमों के लिए बहुत बुरा बदल है। मैंने उनको न तो आसमान और जमीन पैदा करने के वक्त बुलाया, न खुद इनके पैदा करने के वक्त बुलाया। मैं ऐसा आजिज न था कि किसी को खसूस गुमराह करने वालों को अपना दोस्त दस्ते बाजू बनाता। आप और इस दिन को याद करो कि हक ताला फरमाएगा कि जिनको तुम हमारा शरीक समझा करते थे उनको पुकारो, पशु उनको पुकारेंगे सो वो उनको
जवाब न देंगे हम उनके दरमियान में एक आर कर देंगे। इस वक्त मुजरिम लोग दोजख को देखेंगे, फिर यकीन करेंगे कि इसमें करने वाले गिरने वाले हैं, इससे कोई बचने की राह न पाएंगे। हमने इस कुरान में लोगों की हिदायत के वास्ते हर किस्म के ज़रूरी उम्दा मज़ामीन तरह तरह से बयान फरमाए हैं। इस पर भी मुनकिर आदमी झगड़े में पर सबसे बढ़कर है। और लोगों को बाद इसके कि इनको हिदायत पहुँच चुकी, ईमान लाने से और पर अपने परवरदिगार के से कुफ्र वगैरह से मग़फ़िरत मांगने से और कोई अम्र माना नहीं रहा, बखबर इसके को इसका इंतज़ार हो कि अगले लोगों का सा मामला इनको भी पेश आए, या ये कि अज़ाब इलाही और उनके सामने आ खड़ा हो। और रसूलों को तो हम सिर्फ बशारत देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा करते हैं, और काफिर लोग नाहक की बातें पकड़ पकड़ झगड़ा निकालते हैं ताकि इनके जरिए से हक को बचला दे। उन्होंने मेरी आयतों को जिस अजाब से उनको डरा गया था, इसको दिल लगी बना रखा है। इससे ज्यादा कौन जालिम होगा जिसको इसके रब की आयतों से नसीहत की जाए, फिर वो इससे रूगर्दानी करे और जो कुछ हाथों से गुनाह समेट रहा है इसके नतीजे को भूल जाए। हमें इस हक की बात के समझने से उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं, इसके सुनने से उनके कानों में डांट दे रखी है, इस वजह से कि अगर आप उनको राह रास्त की तरफ बुलाएं तो ऐसी हालत में हरगिज़ भी राह पर न आवे। आपका रब बड़ा मग़फ़िरत करने वाला, बड़ी रहमत करने वाला। अगर उनसे इनके अमाल की दारोगीर करने लगता तो इन पर फौरन ही अज़ाब वाक़ा कर देता, मगर ऐसा नहीं करता, बल्कि उनके वास्ते एक मुअय्यन वक्त था, यानी यौम क़यामत कि इससे इतराफ़ यानी क़यामत इससे कि इस तरफ यानी पहले कोई गुनाह की जगह नहीं पा सकता। और बस्तियाँ जिनकी किस्से मज़कूर है, जब उन्होंने यानी उनके बाशिंदों ने शरारत की तो हमने उनको हलाक कर दिया। हमने उनके हलाक होने के लिए वक्त मुअय्यन किया था, और वो वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी खादिम से फरमाया कि मैं इस सफ़र में बार बार चला जाऊंगा यहाँ तक कि मौका पर पहुँच जाऊँ जहाँ दूरी दो दरिया आपस में मिले हैं। यूं ही जमाना दराज तक चलता रहूँगा, पर जब चलते चलते दोनों दरियाओं के जमा होने के मौका पर पहुँचे, अपनी मछली को दोनों भूल गए। इस मछली ने अपनी राह लिया चल दी। फिर जब दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से फरमाया कि हमारा नाश्ता तो लाओ, हमको तो इस सफ़र में यानी आज की मंजिल में बड़ी तकलीफ पहुंची। खादिम ने कहा, लीजिए देखिए, अजीब बात हुई, जब हम इस पत्थर के करीब थे तो इस मछली को तज़किरा को भूल गया और मुझको शैतान ने भुला दिया। मैं इसका जिक्र करता, वो किस्सा हुआ कि इसने मछली से जिंदा होने के बाद वो दरिया में अजीब तौर पर अपनी राह ली। मूसा ने ये शिकायत सुनकर फरमाया, यही वो मौका है जिसकी हमको तलाश थी। सो दोनों अपने कदमों को निशान देखते हुए लौटे। सो वहाँ पहुंचकर उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे यानी खिज़्र अलैहिस्सलाम को पाया, जिनको हमने अपने ख़ास रहमत यानी मकबूलियत दी थी। हमने इनको अपने पास एक ख़ास तौर का इल्म सिखाया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया, उनसे फरमाया कि मैं आपके साथ रह सकता हूँ इस शर्त से कि जो इल्म मुफीद आपको जानिबुल्लाह की सिखलाया गया है इसमें से आप मुझको भी सिखलाएं। इन बुजुर्ग ने जवाब दिया, आप से मेरे साथ रहकर मेरे अफ़आल पर सब्र न हो सकेगा, भला ऐसे उमूर पर आप कैसे सब्र करेंगे जो आपके अहाता वाकिफियत से बाहर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह आप मुझको साबिर यानी जाबित पाएंगे, मैं किसी बात में आपके खिलाफ हुक्म न करूँगा। इन बुजुर्ग ने फरमाया, अच्छा, अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो इतना ख्याल रहे कि मुझसे किसी बात की निस्बत वो कुछ पूछना नहीं जब तक कि इसके मुतालिक मैं खुद ही इब्तदा जिक्र न करूं। फिर दोनों किसी तरफ चले, यहाँ तक कि जब दोनों कश्ती पर सवार हुए तो इन बुजुर्ग ने इस कश्ती में छेद कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने इस कश्ती में इसलिए छेद किया होगा कि इसके बैठने वालों को गर्क कर दिया। आपने बड़ी भारी यानी खतरा की बात की। इन
बुजुर्ग ने कहा, मैंने कहा नहीं था कि आपसे मेरे साथ सब्र न हो सकेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझको याद न रहा, सो आप मेरी भूल चूक पर गिरफ्त न कीजिए और मेरे इस मामला में मुझ पर ज्यादा तंगी न डालिए। फिर दोनों किश्ती में उतर गए, आगे चले, यहाँ तक कि जब एक कमसिन लड़के से मिले तो उन बुजुर्ग ने इसको मार डाला। और मूसा अलैहिस्सलाम घबरा कर कहने लगे, आपने एक बेगुनाह जान को मार डाला, वो भी बेबदले किसी जान के। बेशक आपने ये तो बड़ी बेजा हरकत की। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, 15वां पारा से खत्म किया, भूल फरमा, जो गलती से माफ कर दीजिए। अल्लाह आप लोग भी माफ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।